Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a bat emitting an ultrasonic wave of frequency 5.5 10 raised to 4 hertz flies at a speed of 6 meter per second between two parallel walls. Find the beat frequency observed by bat. Speed of sound is 330 meter per second. Option 1 4000 hertz. Option 2 3000 hertz. Option 3 2000 hertz. Option 4 1000 hertz. So about the Doppler's effect, we know that whenever there is a relative motion between the source of sound and the observer, so observer detects the frequency which is not equals to the exact frequency, and that apparent frequency is given by the expression v plus minus v naught upon v minus plus of vs into n. यहाँ पे we need to be clear with the terms. V is the speed of sound in air, v naught is the speed of or the velocity of observer, vs is the velocity of source, and n is the actual frequency that has been emitted, right? अब यहाँ पे we need to also be careful जब भी we use positive sign in numerator and negative sign in numerator denominator, that indicates that the either source is moving towards the observer or observer is moving towards the source, or both are moving towards each other. So towards वाली condition में we need to follow this numerator plus sign, denominator negative sign. Just we have to understand this कि जब भी हम सोर्स के नज़दीक जाते हैं या सोर्स ऑफ साउंड कम नियर टू अस, सो वी hear the frequency which is actually the increased one, right, जो हमें ज़्यादा सुनाई देती है. So we can say in that scenario ऊपर का प्लस नीचे का नेगेटिव होगा. So that's why we are writing this. So ये from this we can easily remember this, right? And ऊपर negative नीचे positive, that means the source is moving away or from the observer, or observer is moving from away from the source, or both are moving away from each other. So this case is representing the away case, right? So basically ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. And also about the beat frequency, that is denoted with capital N. It is nothing but it is the frequency difference between the two sound wave, that is N1 minus N2. So अब यही phenomena को use करते हुए we will try to analyze the given question. अब हमसे बोला जा रहा है कि we have two walls, और उन वॉल के बीच में इट इज गिवन के बैट इज फ्लाइंग, राइट? सो वी कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ साउंड एंड दिस आर द टू वॉल्स, ठीक है? अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल के लेट्स से बैट इज मूविंग दिस वे. अब यहाँ से साउंड वेव जाएगी एंड आफ्टर इट रिफ्लेक्ट इट कम बैक्स एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय द बैट. अगेन यहाँ से भी साउंड वेव जाएगी एंड अगेन इट विल कम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल. इसको हम कहते हैं वॉल 1, इसको हम कहते हैं वॉल 2, राइट? अगेन इट विल बी डिटेक्टेड. अब इसको हम मान लेते हैं कि ये लेट्स से इट इज n1 n2 बोल देते हैं इसे, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज n1. अब दोनों का डिफरेंस लेके हम वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस बीट फ्रीक्वेंसी, राइट? अब हमें n1 और n2 ही निकालना है. सो उसके लिए सबसे पहले वी विल कंसिडर वॉल 1 का केस ले लेते हैं हम, देन वी विल टेक वॉल 2, राइट? सो वॉल 1 की जब हम बात करेंगे, सो फॉर वॉल 1 की हम बात कर रहे हैं पहले. सो वॉल 1 में हम देख सकते हैं कि जो सोर्स है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द इसको हम वॉल को थोड़ी देर के लिए ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि एक ऑब्जर्वर है, राइट? सो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल. सो अवे वाले केस में वी विल फॉलो दिस कन्वेंशन एंड सोर्स ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन दिस केस, राइट? सो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी हमारे पास, लेट सपोज इट हैज टू बी वी कैन से n मान लेते हैं हम इसे, n तो नहीं मानते, लेट्स से वी विल कंसिडर n डैश बोल लेते हैं हम इसे, राइट? सो n डैश फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सिंस इट इज मूविंग अवे और ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सो v अपॉन v प्लस ऑफ vs, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बैट हम कहेंगे इसे, राइट? एंड इनटू n. सो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी दैट विल बी रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, है ना? अब ऑब्जर्वर यही फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, वापस कर देगा, and that frequency we can say it has to be n1. and अब we can see के source जो है वो it will be like कि अब wall source की तरह behave कर रहा है and bat is behaving as if it is an observer, क्योंकि उसे n1 frequency सुननी है. so we can say and observer is moving away. again away वाला केस आ रहा है. so away वाले केस में we can say observer is moving away, that is v minus of v naught या फिर vb कहेंगे हम इसे, अपॉन नीचे आ जाएगा जस्ट v, क्योंकि अब जो सोर्स है वो रेस्ट पे आ चुका है, राइट? एंड इनटू जो फ्रीक्वेंसी, ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी इसने गेन की, और गेन कितनी की है, इतनी गेन की है उसने, राइट? ये तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की थी या वॉल के पास गई थी, सो यही वो रिफ्लेक्ट कर देगा. सो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई v अपॉन v प्लस वी बी इंटू
n। अब यहाँ से हम देख सकते हैं वी वी कैंसिल हो जाएगा। सो n1 की क्या वैल्यू आएगी, v हमारे पास है 330 माइनस ऑफ वी बी 6, यानी 330 माइनस 6 विल बी 324, और ये आ जाएगा 336 इंटू, इसे हम लिख देंगे 555 इंटू 55,000 हर्ट्स, राइट। सो लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1। अब बात करते हैं वॉल 2 के लिए, सिमिलर केस होगा ये भी। वॉल 2 की जब हम बात करेंगे, सो इसमें हम कह देते हैं एन डबल डैश। एन डबल डैश जो सुनाई देगी इसको, यहाँ से आप वॉल 2 के रिफ्लेक्शन की बात करें, सो एन यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है, अब ये ऑब्जर्वर मान लेंगे वॉल 2 को हम। अब सोर्स जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स के लिए पॉजिटिव साइन हमें लेनी होगी, और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे, सो वी अपॉन नीचे नेगेटिव साइन ली जाएगी, माइनस ऑफ वी बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बैट, राइट, इनटू एन। अब सिमिलरली n2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, n2 के लिए अब ऑब्जर्वर हमारा बैट बन जाएगा और सोर्स बन जाएगा वॉल, दैट इज वॉल 2, ठीक है। सो ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, सो टुवर्ड्स वाला केस ही है ये अगेन, राइट। सो टुवर्ड्स वाले केस में हम क्या लिखेंगे, और इस टाइम पे ऑब्जर्वर इज कमिंग टुवर्ड्स, सो ऑब्जर्वर कमिंग टुवर्ड्स यानी कि v प्लस ऑफ वी बी अपॉन v इंटू एन डबल डैश आएगा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी वॉल 2 अब सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा जितनी उसके ऊपर इंसिडेंटिविटी, यानी कि एन डबल डैश। सो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे v अपॉन v माइनस ऑफ वी बी इंटू एन। यहाँ से हम देख सकते हैं वी वी कैंसिल हो जाएगा। सो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v प्लस वी बी विल बी 336 डिवाइड बाई 324 इंटू 55,000 अगेन। सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2। अब यहीं से we can say we are interested in calculating the beat frequency heard, so we can say therefore beat frequency हम n2 minus n1 कर देंगे, क्योंकि n2 हमें ग्रेटर दिख रहा है यहाँ पे, right। so from here we can say 336 by 324 is equals to uh, इसको लिख देंगे 1.037 माइनस ऑफ 324, अब हम कॉमन निकाल ले रहे हैं 55,000, 324 बाई 336 0.964 इंटू 55,000, राइट। सो फाइनली जो n हमारे पास आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 4015, राइट। सो दिस मच बीट frequency he will be hearing and it will be in hertz, right। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो ऑप्शन मैचिंग with this is very closely, so option 1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.